Hello everyone, welcome to the next lecture on curve tracing. In this lecture, we are going to discuss the next example. So now see here, example is trace the curve a square into x square is equals to y cube in bracket twice a minus y. Then show that the area is pi a square. That means firstly we have to trace the curve and जो diagram आएगी using that diagram we have to find area. जो भी curve आपको मिलेगा, जो shape वहाँ पे आएगा, उसके बीच में जो bounded region है, उसका area हमें find out करना है. So in solution, here given equation of curve is given a square into x square is equals to y cube in bracket twice a minus y. Suppose it is our equation 1. If we multiply by this y square and shift whole term into the left hand side, then it is a square x square minus twice a y cube plus y raised to the power 4 equals to 0. Now, to trace the curve, we have to go through all these points. The first point is symmetry. To test the symmetricity, here we have to check the power of variable x and y. In this curve, we have to check whether this curve contains only even power of y. Now see here, it contains y cube. That means only even power of y is not contained in this curve. So we can say this curve is not symmetric about x-axis. Now the next we have to check whether the curve contains only even power of x. Yes, it contains only even power of x. So this curve is symmetric about y-axis. यहाँ पे अगर देखोगे तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे इवन पावर है. सो ये यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सिंस इक्वेशन 1 कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ equation 1 contains even power of x only. If equation contains even power of x only, this implies curve is symmetric about y-axis. If it contains even power of x, then curve is symmetric about y-axis. Suppose next is we have to check whether our curve is passing through origin or not. The given equation of curve does not contain any constant term. That means this curve is passing through origin. Constant term means क्या होता है, सिर्फ उसमें constant होना चाहिए. Constant term मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे अगर प्लस b है इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, जस्ट ये कांस्टेंट यहाँ पे बैठा है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो हियर फर्स्ट टर्म कंटेन वेरिएबल x, सेकंड y, थर्ड में अगेन y कंटेन है. सो हियर ईच टर्म कंटेन variable either x or y, so it does not contain any constant. Since we can say, since equation 1 does not contain any constant term, this implies curve is passing through origin. That means 0, 0. Then if our curve is passing through origin, then next task is check नेचर ऑफ ओरिजिन. अब ये जो ओरिजिन है वो किस नेचर का है वो आपको फाइंड आउट करना है. नेचर ऑफ ओरिजिन दैट मीन्स वेदर इट इज ए नोड और कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट. ये जो 0,0 ओरिजिन है वो नोड है कि कस्प है कि कॉन्जुगेट पॉइंट है, ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है. सो हाउ टू चेक नेचर ऑफ ओरिजिन? फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व वी हैव टू टेक लोवेस्ट डिग्री टर्म एंड इक्वेट टू 0. हियर degree of first term is 2, degree of second term is 3, and degree of third term is 4. That means lowest degree term is this one, first term. Here if we take first term and equate to 0, here a is a constant which is not equals to 0. If it is a square is not equals to 0, so obviously product 0 कब आएगा, when second term is 0. So here x square equals to 0. So this implies x equals to 0, 0. That means at origin we get two tangent. Tangent is x equals to 0.
second is x equals to 0. So we get two tangent at origin, both are real and equal. If it is real and equal, then our origin is cusp. So here this origin, this implies origin is cusp. If it is a cusp, that means at origin we get this type of diagram. Either ये cusp upper side में रह सकता है या फिर lower side में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. अगर y एक्सिस को सिमेट्रिक है तो y एक्सिस के अगर राइट साइड में जैसा पार्ट है सेम आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा. एक तो फिर डायग्राम ऐसे आ सकता है या फिर इस तरह से, या फिर दोनों साइड से ये ऐसे कर्व्स आ सकता है. नेक्स्ट क्या रहेगा, ये जो है ये मे बी अप टू इंफिनिटी तक के जा सकते हैं या फिर किसी फाइनाइट पॉइंट पे ये स्टॉप भी हो सकता है. कोई राइट ऊपर का स्टॉप हो सकता है या फिर बॉटम वाला या फिर दोनों भी, या फिर सिर्फ अपर का पोर्शन रहेगा बॉटम में नहीं रहेगा. तो ये हमें कब पता चलेगा? फॉर दैट नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड, ये अगर कर्व यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट होता है तो वी नो दैट ये क्या है, इंटरसेक्ट अगर होता है तो वी कैन फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. So for to find point of intersection, तो point of intersection कौन से intersection निकालने? So here our curve is symmetric about y axis. अगर y axis को symmetric है तो ये y axis का इक्वेशन रहता है x equals to 0. और इस y axis को अगर symmetric है तो obviously symmetricity बनाने के लिए वो इस एक्सिस को कट करते हुए जाएगा. अब ये कौन से पॉइंट में कट कर रहा है वो आपको निकालना है. और सपोज आपके पास में कोई भी कर्व क्यों ना हो, अगर कर्व आपके पास में और वो एक्स एक्सिस, ये कर्व अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली. मतलब क्या करोगे, कर्व का इक्वेशन एंड ये जो लाइन है इसका इक्वेशन. तो लाइन मतलब वाई एक्सिस जिसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0. So x equals to 0 and given equation of curve, इन दोनों को अगर हम simultaneously solve करते हैं तो we get point of intersection, कि कर्व आपका कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है y axis को, वो आपको नोन हो जाएगा. So here our curve is symmetric about y axis, that means we know that x equals to 0. This x equals to 0, put x equals to 0 in equation 1. If you put x equals to 0, then this left hand side will be 0. Remaining is, it is a y cube in bracket 2a minus y equals to 0. Here equate each factor equals to 0. So we get y cube equals to 0 and here 2a minus y equals to 0. और यहाँ पे हम रूट्स नहीं निकाल रहे, इसलिए मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 0 3 टाइम्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि जस्ट हमें पॉइंट निकालना है. तो एक 0 लिखो कि 3 बार 0 लिखो, इसके लिए सेम होगा, क्योंकि रूट्स निकालते तब आपको लिखना पड़ता है बार बार, बट यहाँ पे इट इज सफिशिएंट टू राइट सिंगल टाइम. सो हियर फ्रॉम दिस टर्म we get y equals to 0 and from this term we get y equals to 2a. That means when x is 0 we get y 0, when x is 0 we get y equals to 3. So therefore point of intersection are 0, 0 and 0, 2a. इसका मतलब है कर्व y एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक 0 पे और एक 2a पे. ठीक है, तो we get 2 point of intersection. Now next is we have to check asymptote, whether asymptote is exist or not. अब asymptote का concept क्यों निकाल रहे हैं, देखो यहाँ तक तो हमें इतना पता चल गया है कि हमारा ग्राफ जो है वो कस्प है, आइदर अपर साइड में आ सकता है या फिर डाउन साइड में. उसके बाद में हमने क्या पॉसिबिलिटी देखी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिससे नोन हुआ कि ये y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है एज वेल एज 2a पॉइंट पे. सपोज y एक्सिस का 2a पॉइंट यहाँ पे, तो ये जो है 0, 2a को कट करेगा, तो ये इस टाइप पे आ सकता है. तो यहाँ पे तो ये पता चल गया, क्या ये नीचे को कट कर रहा है? नहीं, क्योंकि हमें वी गेट सिंगल पॉइंट, ये जो है अपर साइड में एक ये पॉइंट मिला है, बॉटम में कोई पॉइंट नहीं मिला है. दैट मीन्स यहाँ पे तो वो फाइनाइट नहीं है. नाउ अगर हम असिम्प्टोट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इफ वी गेट असिम्प्टोट, तो ये तो अपर साइड में फाइनाइट ग्राफ है, मतलब वहां पे तो असिम्प्टोट नहीं आएगा, बिकॉज असिम्प्टोट इज नथिंग बट टेंजेंट एट इंफिनिटी. और ये ऊपर का पोर्शन दिख रहा है कि ये फाइनाइट है, स्टॉप हो गया है, तो ऑब्वियसली इंफिनिटी तक के जाएगा नहीं, तो उसको टेंजेंट एट इंफिनिटी आएगा नहीं. तो अपर पे तो नहीं पॉसिबल है, बट मे बी यहाँ पे तो आ सकता है ऐसा. सो ये है कि नहीं है वो चेक करने के लिए नेक्स्ट टास्क इज
check asymptote. Now for asymptote, we have to write y equals to either function of x or x equals to function of y. जो भी easily लिख सकते हैं वो हमें यहाँ से लिखना है. So from equation 1, we can easily write x equals to, so now see here from equation 1, x square equals to y cube twice a minus y divided by a square. That means x equals to plus minus under root of y cube in bracket twice a minus y divided by a. And here we have to check at which point of y we get x infinity. कौन से पॉइंट पे देखो, पे क्या है, डिवीजन में अगर कोई y का टर्म रहता था तो उसको हम इक्वल्स टू 0 लेके असिम्प्टोट निकाल सकते हैं, बट ये यहाँ पे कोई डिवीजन में पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स असिम्प्टोट इज डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसके लिए नो असिम्प्टोट. ओके, यहाँ पे कोई असिम्प्टोट नहीं है. द नाउ नेक्स्ट इज, अब ये तो हो गया कि ये डायग्राम यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ये स्टॉप हो गया. नेक्स्ट वी हैव टू चेक इसका जो शेप है. अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये कितना कहाँ पे, मतलब ये जो है ये ऐसे नीचे आके इतना टिल्ड होके फिर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है कि किस तरह से वो शेप ले रहा है. ये जो एग्जैक्टली ये जो कर्व हो रहा है ना, वो कैसे कर्व हो रहा है उसको निकालने के लिए नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड सम पॉइंट्स. और पॉइंट्स कैसे निकालोगे, ये कुछ y की वैल्यूज को हम अज्यूम करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस y वी हैव टू फाइंड x. why we are considering y, because we know that ये जो कर्व है यहाँ से हमें नोन क्या हो गया है कि अगर y varies from 0 to 2a, मतलब y की वैल्यू 0 to 2a ये फिक्स है. सो यहाँ पे 0 to 2a, यहाँ इस इंटरवल के अंदर जो जो y की वैल्यूज आपको पता है या फिर जो हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y की 0 to 2a में कुछ वैल्यूज को हम कंसिडर कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम x फाइंड आउट करेंगे. दैट मीन्स हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे कर्व के ऊपर के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको हम प्लॉट अप करके कर्व को ज्वाइन करेंगे तो वी गेट एग्जैक्ट डायग्राम. ठीक है, एंड इसी के लिए नेक्स्ट हमारा रीजन का भी पोर्शन रहता है. अब देखो रीजन में क्या होता है, जैसे ये जो कर्व है इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि y कहाँ से वैरी हो रहा है, 0 to 2a, मतलब रीजन में y लेस देन इक्वल, ये 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 2a. तो y का रेंज ये वाला है. क्या इसके सिवा भी y कोई वैल्यू ले सकता है? Suppose we take less than 0. If y is taking less than 0 values, so now see here it contains y cube in under root y cube. Here, if we take less than 0, any value of y which is negative, then if we put here, then we get under root of negative term, and under root of minus sign, that means we get imaginary. और imaginary के corresponding हम diagram को draw ही नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल एक्सिस, रियल इसमें अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स अगर हमने y की वैल्यू निगेटिव ले ली तो डायग्राम वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वहां पे x का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सेम वे इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ y विच इज ग्रेटर देन 2a, अगेन ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट. दैट मीन्स सिर्फ यही एक इंटरवल है, इसी के बीच में y की वैल्यूज रह सकती है. सो ये हो जाएगा रीजन के करस्पॉन्डिंग. नाउ अब डायग्राम के शेप के लिए क्या करोगे, if we put y equals to 0 here, then we get corresponding value of x. Here if we put y 0, then we get x equals to 0. Next is we have to put y equals to a by 2. Here we have to put y equals to a by 2, so we get x equals to plus minus under root of, here it is a by 2 raised to the power 3 minus twice a minus a by 2 divided by whole divided by 8. Simplify this term, it is a under root of a cube divided by 8. It is nothing but 3a by 2 divided by 8. Here under root of ये a raised to the power 4, ये a के साथ में cancel, so it is a and it is a under root of 3 by 16. ये आएगा under root of 3 by 16. तो under root of 3 by 16 ट्राई करो क्या आता है, that is a plus minus 0.4a. Now here if we put y equals to a in given term, if we put y equals to a here, then we get corresponding value of x. So y equals to a, so it is a
twice a minus a is a, और here a raised to power 3, तो a raised to power 4 अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो it will be a square divided by a, that means it is a plus minus a. Similarly, if we put third point, this one, y equals to 3a by 2, then we get it is a 1 point plus minus 1.3 a, and also we जो हमने निकाल के रखा है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. कौन सा पॉइंट निकाल के रखा है? When y equals to 2a, so we know that when y is our 2a, then x is our 0, है ना? ये यहाँ पे निकाल के रखा था y 2a, तो x क्या है? 0. So ये जो टर्म्स है इन सबको अगर हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट अप करके सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो देखो डायग्राम कैसे आएगा. मैं इसका एग्जैक्टली शेप डायग्राम शो करती हूँ. ना सी हियर, ये जो हमने पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, y की वैल्यू 0, तो वी गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x दैट इज 0. y इज a by 2, तो देन वी गेट प्लस माइनस 0.48. देन सिमिलरली व्हेन y इज a, वी गेट प्लस माइनस 8. अब ये जो पॉइंट्स है 0,0, a, माइनस a, इन सबको अगर एक्स वाई प्लेन में प्लॉट अप करते हैं तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट 0,0, सेकेंड इज 0.4a, a by 2, तो ये पॉइंट आएगा, और इसी का निगेटिव वाला पार्ट तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, फिर a, यहाँ पे तो माइनस a, यहाँ पे आएगा दिस वन, और लास्ट पॉइंट कौन सा है? 0,2a मतलब ये वाला पोर्शन. अब इन सबको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो we get this diagram. So see here, next additional is we have to find area. अब इसके लिए अगर एरिया निकालना है तो here area is equals to integral y varies from 0 to 2a. y तो फिक्स दिख रहा है यहाँ पे 0 to 2a, और ये लेफ्ट और राइट का सेम एरिया है, so we have to multiply by 2. Now लिमिट ऑफ x, अगर x का ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है ना y एक्सिस, इसका इक्वेशन रहता है x इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक के जा रहा है? यहाँ तक के, जो कि यहाँ पे क्या है? कर्व. अब मैं यहाँ पे इंफिनिटी या फिर कोई पॉइंट नहीं ले सकती हूँ. अगर कोई पॉइंट ले लिया तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और वो रेक्टेंगल होगा, कि एक्स्ट्रा ये यहाँ का पोर्शन उसमें इंक्लूड हो जाएगा. और हमें अगर ये कर्व को सेटिस्फाइड करना है तो हमें यहाँ से लेके इस कर्व तक की लिमिट निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ पे तो हमें पता है कि x क्या है? 0. सो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 अप टू दिस कर्व. अब इस कर्व के ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना है? तो हमने असिम्प्टोट के टाइम पे x इक्वल्स टू निकाल के रखा है. फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y क्यूब इन ब्रैकेट 2a माइनस y डिवाइडेड बाय a. यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, तो मुझे दैट मीन्स अवर x वैरीज फ्रॉम 0 टू दिस टर्म. सो यहाँ तक के अगर x है तो ये हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ y क्यूब इन ब्रैकेट 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a, एंड दिस इज dx एंड dy. एक अब क्या हो रहा है? 0 से यहाँ तक क्या आ रहा है? इसके वजह से हम क्या लिखते हैं एक्चुअली, इसी टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 0 टू 2a x फंक्शन ऑफ y dy. जो फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, इसमें पुट अप करो, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज 2 एज इट इज x इन द फॉर्म ऑफ y अगर लिखते हो तो फ्रॉम कर्व, तो ये हमने लिखा हुआ ही है, दैट इज अंडर रूट ऑफ y क्यूब इन ब्रैकेट 2a माइनस y डिवाइडेड बाय a इंटू dy. देखो ये वाला करके ऐसे लिखो या फिर इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप करो, यही आएगा. आइदर इस टर्म को सॉल्व करके लिखो या फिर डायरेक्टली जो फॉर्मूलेज है, जो नोट्स में ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से सॉल्व करो, दोनों से सेम ही आएगा. ये अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ये a इज ए कांस्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रल, एंड रिमेनिंग इज 2 बाय a इंटीग्रल 0 टू 2a, इट इज नथिंग बट y रेज़ टू पावर 3 बाय 2, अंडर रूट की वजह से ये y रेज़ टू पावर 3 बाय 2, एंड सेकेंड इज 2a माइनस y रेज़ टू पावर 1 बाय 2 dy. हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल? क्या के डेफिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? बीटा ऑफ m कॉमा n is a integral 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx.
और इस डेफिनेशन में अगर मुझे इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है तो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड एक्स रेज टू पावर m माइनस वन, इसको तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, वन माइनस ऑफ टर्म, सो वन माइनस के लिए वी हैव टू टेक दिस 2a आउटसाइड एंड रेज टू पावर हाफ है, सो हियर दिस इज 2 by a as it is, and if we take 2a raised to power half outside, then it is a 2a raised to power 1 by 2 integral 0 to twice a y raised to power 3 by 2 1 minus y divided by here 1 minus y divided by twice a raised to power 1 by 2 dy. Now next task is, here we required single variable, so here y by twice a we have to put t, so in the next step we have to put y by twice a equals to t, so therefore dy is equals to twice a dt. That means we are converting variable y in the form of t, और अगर वो convert करते हैं तो we have to also change corresponding limit. So here lower limit of y is 0, then corresponding value of t is again 0. Here put y equals to 0, so we get t equals to 0. And upper limit of y is 2a, so therefore corresponding limit of t is 1. Here put y equals to 2a, so we get t is 1. Now put all the value in this integral, so a is equals to, outside क्या था, 2 divided by a, then next is twice a raised to power 1 by 2 integral 0 to 1, and next is y raised to power 3 by 2. From this term y is nothing but 2a into t raised to power 3 by 2 in bracket 1 minus y by a, so 1 minus t raised to power 1 by 2 into dy, value of dy is twice a dt. Here twice a, this twice a constant, we can take outside the integral, here power is 3 by 2 and here power is 1, so total power of twice a is 5 by 2. If we take outside the integral, then again outside the integral also contain twice a raised to power half, so यहाँ पे power है 1 by 2 और यहाँ से जो इंटीग्रल के अंदर से आएगा उसका पावर हो जाएगा 5 by 2, and both are in the power of twice a, so we can add this power, so it is a 3. So outside the integral twice a raised to power 3. Okay, so in the next step a is equals to 2 by a twice a raised to power 3, remaining is integral 0 to 1 t raised to power 3 by 2. For definition of beta function, we have to write power in the form of m minus 1. So this 3 by 2 we can write 5 by 2 minus 1, and here 1 minus t raised to power we can write 3 by 2 minus 1. Ultimately it is a 1 by 2 dt. So by definition of beta function, here again we can simplify outside term 2 raised to power 4, and this a is cancelled with this a cube, then it is a raised to power 2 remains. This is integral is nothing but beta of 5 by 2 comma 3 by 2. But we don't have to stop here because beta is again representing integral. So in the next step we have to use relation between beta and gamma. So it is 2 raised to power 4 a square gamma. Simplify this term, so we get it is a 2 raised to power 4 a square. यहाँ से 1 subtract करोगे तो 5 by 2 minus 1 3 by 2 1 by 2 under root of 5. Similarly इस term को सब simplify करोगे तो इट इज 1 by 2 under root of 5 divided by 3 factorial. So यहाँ पे देखो ये 2 2 2 2 क्यूब और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल में 2 है, तो 2 raised to power 4 इस 2 raised to power 4 के साथ कैंसिल और दिस 3 इज कैंसिल विद दिस 3, तो 2 raised to power 4 और 3 कैंसिल आउट होगा, रिमेनिंग बचेगा a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पाई इंटू अंडर रूट ऑफ पाई इज पाई, सो रिमेनिंग इज a स्क्वायर पाई. तो ये हो गया एरिया इज a स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट, और यही हमें शो करना था. क्वेश्चन इज शो दैट एरिया इज पाई a स्क्वायर, तो यही हमने शो किया. Below the video you can see subscribe button. Click on that subscribe and there in the right hand side bell icon. Click on the icon to get the notification of updated video. In the left hand side there is a Swati Think Mathematics icon. Click on that icon. You will see home page of my channel video playlist. Here in the playlist all the videos are available in the folder form. So
So if you want video on particular topic, just click on that folder. Thank you. Like, share and subscribe.